Amen. Loving Heavenly Father, we thank and praise you for this beautiful day that you have given us. We come before you in the name of Jesus. We thank you, we praise you, we glorify your name, we magnify your name. Lord, we have come to hear your word, Lord Jesus. Like Peter, we say, Lord, where can we go? You have the words of eternal life. Yes, Lord. Lord, we come to you to have more of you and less of us, Lord Jesus. Uproot everything that is not of your kingdom, Father God. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your word, Master, that we may grow in your love more and more, Lord. Lord, we ask you to anoint us from the crown of our head to the sole of our feet, Lord. We thank you for the precious gift of your Son, Jesus. Thank you, Jesus, for dying on that cross for our sins. Thank you for delivering us, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your presence is here right now. As your word says, where two or three are gathered in my name, there I am. Lord, we truly believe that you are present here right now and answering every prayer of ours, Lord Jesus. And your word is becoming a flesh right now into our life. In Jesus' mighty name we pray. Amen, Amen. amen, amen. Amen. So, sister, I was thinking that हम लोग एक रिवीजन करते हैं जो बहुत पहले हमने डिस्कस किया था पिता परमेश्वर के प्रेम पर। मतलब हम रोज ही डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो वर्स है 1 John 3:13, Okay. ठीक है। तो मैं ये एक मिनट, हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ। आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? आपको दिखाई दे रहा है सिस्टर मेरा No, baby. स्क्रीन? No, sister. Nahi. No. Okay, I need a little more practice on this. कोई नहीं। So I'll just open up the chat, open up the scripture and paste it in the section. Just bear with me. Okay. Abhi, can you hear me? Am I audible? Yes, loud and clear. Okay, praise God. Thank you, Jesus. 1 John 3:13 ये कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो अचरज मत करो। In English, it says, do not be surprised or do not marvel, my brethren, if the world hates you. We know that we have passed from death to life.
because we love each other. In Hindi, it is हे भाइयों, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो अचरज मत करो। हमें पता है कि हम मृत्यु के पार जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम अपने बंधुओं से प्रेम करते हैं। सो तो जो प्रेम नहीं करता, आगे बढ़ती हूँ, हाँ, जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु में स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाई से घृणा करता है हत्यारा है, और तुम तो जानते ही हो कि कोई हत्यारा अपनी समाप्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता। समर्पित समाप्ति, आई थिंक समाप्ति के रूप में अनंत जीवन को नहीं रखता। So I'll read it in English now. Do not marvel, do not be surprised, my brethren, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. So यहाँ पर हमने रिवीजन किया था कि जिस प्रेम के बारे में बाइबल में लिखा है, जो वचन में लिखा है, वो किस तरह का प्रेम है। क्या वो प्रेम हम जैसे सिस्टर फ्लोरी ने कहा, जो प्रेम हम एक दूसरे से इस जग या इस संसार ने हमें जो सिखाया है, या हम जो एक दूसरे से करते हैं, क्या वो है, या प्रभु यीशु ने जैसे हमसे प्यार किया, जैसे हमसे प्रेम किया। जब पुराने वचन में वो पुराने अध्याय में पिता परमेश्वर ने हमें कुछ कमांडमेंट्स दिए थे, ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि वो सब सारे कमांडमेंट्स एक कमांडमेंट में पूरा हो जाता है, जो है प्रेम। सबसे ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तो हम एक दूसरे से किस तरह का प्रेम करते हैं, ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि मैं अगर मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे भाई और मेरे बहन है कौन, जिसका मतलब जो अपने फैमिली में अगर इकलौता है, इकलौता बेटा या बेटी है, जिसके अपने माता पिता से कोई भाई बहन नहीं है, तो क्या वो इस वचन से ये वचन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो जिसके साथ हम ऑफिस में काम करते हैं, या जो हमारे बगल में रहता है,
जो हमसे रोज मिलता रहता है, या कभी कभार जो रिक्शा वाला हो सकता है, जो अम, हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन हो सकता है, कोई भी, जो भी है, जो भी है, अगर हमसे मिला जुला, हमने उनसे वचन शेयर करना है, वही हमारा भाई या बहन होता है। थैंक यू, प्रेज यू जीसस। इट्स अगेन गॉन। Praise you, Jesus. थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. We bless your name, Lord God. Worthy to be praised, Lord Jesus. Thank you, Father. Praise you, Jesus. कल हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु हमसे किस तरह का प्यार करते हैं। जो प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, द लव दैट इज नॉट जेलस। ईर्ष्या यानी जेलसी। प्रेम खुद की प्रशंसा नहीं करता। लव इज नॉट बोस्टफुल। अभी ईर्ष्या का मतलब क्या है? जेलसी यानी, मैंने तो आपको शायद सीधा सीधा ट्रांसलेशन दिया, लेकिन उसका मतलब क्या है? ईर्ष्या का मतलब है किसी और की बढ़ोती या किसी और का अच्छा होना। वो हमसे सहन नहीं होता, और अ, हम हमें जो आशीष मिला है प्रभु के द्वारा, उसको हम नजरअंदाज करके, जिसको हम बिना देखे, हम किसी और की बढ़ोतरी पे ज्यादा हमें नजर होते हुए हम नाखुश हो जाते हैं, उसे कहते हैं ईर्ष्या या जेलसी। Jalan. जलन। जी, जी, हमें जैसे और जरूरी नहीं है कि हम अम, ऐसे हम कहते हैं कि हमें तो मतलब इसी से हमें तो कभी जलन हुई नहीं, हम तो अपने में ही खुश हैं। ये तो मतलब लाइफ में सबसे बड़ा झूठ होगा। लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई अम, अ, कुछ भी, या तो ऑफिस में होता है अम, कि किसी और को अम, 2 रुपए भी अगर, 10 रुपए भी अगर, या 100 रुपए भी अगर हमसे ज्यादा बोनस पे मिले, तो हम तुरंत ही, शैतान हमारे जहन में ये डाल देता है कि अ, अरे, तुमने तो इस साल इतनी मेहनत की, और तुम्हारा अप्रेजल भी, अप्रेजल या तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे बॉस के साथ इतनी अच्छी हुई थी, उन्होंने तो तुम्हें प्रमोशन प्रॉमिस किया था, बढ़ोतरी, सैलरी में बढ़ोतरी की शपथ दी थी, उन्होंने बोला था कि तुमको तो बढ़ोतरी देंगे, लेकिन उसको तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे साथ वाली जो है, उसको ज्यादा पैसे मिले, और तुरंत ही हम लग जाते हैं कि हाँ, ये तो बात सही है कि उसको ज्यादा मिला और मुझे नहीं मिला। क्यों? हम देखते ही नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ शुरुआत हुई थी, हमें किस चीज में बरकत मिली है। वो सब बिना हम लोग बिना देखे या उसको नजरअंदाज करके, हम पहले ये देखते हैं कि किसको क्या मिला, है ना?
तो हम एक वो है उदाहरण के तौर पे, और कोई जैसा कोई है जो हमें लगातार रोज रोज बार बार लगातार परेशान कर रहा हो, शायद वो हमारे बगल में रह रहा हो, अम, या हमारे ऑफिस में या हमारे फैमिली में, अ, बिना सोचे समझे, बिना हमें जाने अ, दुख पहुंचाता हो, तो बजाय इसके कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए ब्लेस करें, उनको ब्लेस करें, उनको आशीषित करें, जी। और प्रभु के प्रेम पर, प्रभु के वचन पर हम विश्वास करें कि प्रभु, अ, आप हमसे बेहतर जानते हैं। जो हम जो आपने आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आपका प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला है, जैसे रोमी 5:5 में है। होप डज नॉट पुट अस टू शेम, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. Romans 5:5 teaches us the scripture. The scripture teaches us about God's love poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. तो वही हिंदी में कि पिता परमेश्वर का प्रेम हम में, हम विश्वासियों में उंडेला है पवित्र आत्मा द्वारा। तो हम ये प्रेम, हम तुरंत ही लग जाते हैं कि कंपेयर करना या एक दूसरे से नाखुश होना, या ये सोचना कि अरे 1940 में उसने मुझे ये कहा था, और वही वही बातें शैतान हमको याद दिलाता है। लेकिन हम कभी शैतान को ये नहीं बोलते पीछे मुड़कर मुड़कर कि शैतान तू तो झूठा है, तुम्हारा काम ही यही है कि तुम झूठ बोलो और हम पर उंगली उठाओ कि हम उसने हमें ये किया था। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, और उनके वचन के अनुसार उनका प्रेम मुझ में उंडेला गया है। तो मैं इसे नजरअंदाज करती हूँ, क्योंकि मैं मुझ में जो प्रेम है, प्रभु यीशु का प्रेम है, वो सबसे ऊंचा है। और मैं जो भी मुझे दुख पहुंचाए, वो उसे मैं आशीषित करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ। तो जब हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन में चलते हैं, और उनका प्रेम हमें उनका वचन हमें याद दिलाता है, उनकी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है कि इस वक्त पर हमें उन किसी से गुस्सा रखना नहीं है, किसी से अम, ईर्ष्या नहीं होना है, बल्कि प्रभु के प्रेम में चलना है। भले ही टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग नहीं है, जैसे ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, जैसे हम क्या कहते हैं हिंदी में यार, सैंड्रा, आई नीड योर हेल्प। Just शांता, tell. सिस्टर शांता। परीक्षाएं। परीक्षा, हाँ, Thank जैसे you. परीक्षा में हम रोज तो हमारी परीक्षा होती है यस सिस्टर। है ना, कि कोई ऐसा दिन होता है, ब्रदर जूड या ब्रदर जॉन, कोई ऐसा दिन निकलता है हमारा जिस दिन हमारी परीक्षा नहीं होती?
हाँ, ऐसा होता नहीं है, लगभग लगभग हर दिन में कोई ना कोई परीक्षा आते ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक़्त हमें प्रभु का वचन इमीडिएटली मतलब तुरंत ही हमने अगर कोई उसी वक़्त कभी-कभी मुझसे ऐसा हो जाता है कि मतलब मेरे मुँह से बोल ही नहीं निकलते। इत कभी-कभी इतना गुस्सा आता है और मोस्टली ऐसा होता है कि सबसे नज़दीकी लोग होते हैं हमारे अम, उन पर ही हमको सबसे गुस्सा आता है या जो सबसे नज़दीक होते हैं हमारे, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही हमसे मतलब हमें उनसे ही सबसे ज़्यादा दुःख मिल जाता है। लेकिन हम ये नहीं याद रखते उस वक़्त कि ये वे लोग नहीं हैं, जो हमें दुःख पहुँचाना चाहते हैं। बट ये शैतान का काम होता है। तो हम तुरंत ही हमने अपना मुंह खोल करके बोलना है कि शैतान तू तो झूठा है और तू तो आया ही है हमें गुमराह करने या हमसे हमारा चैन अम, ले जाने। लेकिन मेरे प्रभु यीशु हैं जो आए हैं, जो हमें अपना प्रेम देकर गए, हम हमें अपना संयम देकर गए, पेशेंस। और उनका प्रेम ही है जो मुझे अपने इन चहीते लोगों से, हमारे फैमिली लोगों से जो हमें गुस्सा दिलाते हैं या हमें दुख पहुंचाते हैं, उनसे हम हमेशा प्रेम करें, प्रभु यीशु वाला प्रेम। आमीन। हेलो सिस्टर शांता। यस सिस्टर। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सॉरी सिस्टर, मैं सुन रही थी आप जो बोल रहे थे। हाँ, आपके पास कोई मैं पूछ रही थी कि ऐसा कोई दिन निकलता है क्या जब भी हमारी परीक्षा नहीं होती? नहीं सिस्टर, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि उस दिन हमारा परीक्षा नहीं होती है। हम हर दिन ऐसा रहता है कि हमें परीक्षा से जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम क्या कहते हैं, हमें ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं कि मतलब हमारे विरोध आते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई हमारा ही सपोर्ट में होगा। हाँ, जी, जी। तो हमें हर दिन परमेश्वर के प्रेम से चलना है। हाँ, तो पहले क्या होता था जब भी हम प्रभु का वचन से इतना वाकिफ नहीं थे, तो हम लोग बाइबल पढ़ते तो थे, सुनते भी थे चर्च में, लेकिन हम मतलब इतना हम वचन में ये नहीं रूटेड नहीं थे, है ना? यस तो सिस्टर। इस अभी क्या हो रहा है कि हम ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, हमें ज्यादा जितना हम प्रभु को जानने लगते हैं उनके वचन द्वारा, उनकी पवित्र आत्मा द्वारा, तो हमें अभी पता चल रहा है कि हमारे इर्द गिर्द शैतान कितना ट्राई कर रहा है ना? कि बहुत। हाँ, अभी तो मतलब ज्यादा ही हम पर मुश्किलें आती हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जो उनके रास्ते पे चलता है, जो विश्वासी हैं, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि परीक्षाएं नहीं आएंगी। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस will be there. Many are the trials and tribulations, many are the afflictions.
but God is with us and he delivers us from all of them. है ना? Yes, अब sister. ये होगा कैसे? प्रभु का वचन तो कहता है कि परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन मैं आपको उनसे मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये हमें कैसे पता, ये कैसे हम कैसे हम यूज करेंगे उस वक्त? जब हम जड़ वचन में जड़ पकड़ेंगे तभी होगा सिस्टर। जी हाँ, जब हम वचन की रोज जब हम वचन का मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, यस सिस्टर। मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, जिसको हम लगातार बोलते हैं। अ, और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम हमारे रोज के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि आज वक्त ही नहीं मिला प्रभु के साथ बातचीत करने का। तो हम क्या कहते हैं, गिल्ट, एक गिल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं सिस्टर? सिस्टर शांता? Yes, sister. अपराध बोध। अपराध बोध। अपराध नहीं, अपराध बोध। तो सिन है। जैसे हमें बहुत बुरा लगने लगता है कि आज हमने ग्लानी प्रभु ग्लानी बोल सकते हैं, ग्लानी। ग्लानी। हम्म, ओके ओके, ठीक है, दिस इज अ न्यू वर्ड। आई एम लर्न। जैसे हमने गिल्ट, जैसे हमें बहुत बुरा लगने लगता है कि आज तो हमने प्रभु के साथ वक्त ही नहीं बिताया, आज हमने कोई पढ़ाई नहीं की, और हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे नाराज होगा। लेकिन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर तो प्रेम है। भले ही हम उनसे बात ना करें, लेकिन हम ऐसे मतलब बाइबल निकाल कर प्रभु का वचन पढ़े 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 बिना हमें ही ऐसा लगता है कि शैतान हमारे जहन में डालता है, आज तो तूने कुछ नहीं किया, आज तो तेरे पास टाइम ही नहीं था, तुम कैसे प्रभु को अपना मुंह दिखाओगी? एक दिन गया, 2 दिन गया, हम अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं। तो जब हम फिर से मुड़कर वापस बोलते नहीं है शैतान को कि तू चुप रहे यार, तू चुप रहे, मुझे मालूम है पिता परमेश्वर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो टाइम और डेट नहीं देखते। बचपन से लेके आज तक, बचपन से क्या, जब से मैं मेरी माँ के पेट में हूँ तब से, या मैं जब से बिन मेरी माँ के पेट में आने से पहले ही प्रभु यीशु मुझे जानते हैं। Yes. जानने का क्या मतलब है, उन्होंने ही मुझे बनाया, तो उनसे बेहतर मुझे कौन जानेगा? तो वो तो दिन या दिनों का या पलों का, आज एक दिन बीता, 2 दिन बीता, मैंने उनका वचन नहीं पढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं प्रभु का वचन बैठ के ऐसे उनके साथ बातचीत करूं। ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं किचन में बिजी होती हूँ या अपने बच्चे को याद दिलाती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं है, आप भी एक बार ऐसे हुआ था ना कि मेरी ने बोला कि मुझे ये फलाना फलाना मेरा जो दोस्त है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे मारता है या मेरे बाल खींचता है या बहुत ही मुझे तंग करता है, हम सबको तंग करता है।
तो मैंने कहा कि अगर आप उनसे भी ऐसा ही व्यवहार करो तो आप में और उसमें क्या अंतर होगा, क्या हम्म, होगा, है ना? हम्म, तो हम तो कहते ही हैं आपसे कि आप हो पिता परमेश्वर की बच्ची, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, है ना? तो यस, और हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में? हमको प्रभु ने क्यों लेकर आए हैं इस दुनिया में? क्योंकि हमने प्रभु का प्रेम जो हम में उंडेला है, वो सबको बताएं उनके प्रेम के बारे में, उनके उनके जीवन के बारे में। तो अगर आप मेरी बेटी को मैं बोलती हूँ, अगर आप ये उनसे एक बारी बोले कि कोई बात नहीं, आपने मुझे हर्ट किया है, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ, चलो हम साथ ही खेलते हैं, कंटिन्यू करो, उस खेल को जारी रखो। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा, मैं उससे कैसे प्रेम कर सकती हूँ जो मुझे इतना हर्ट करता है, मेरे बाल खींचता है। तो वो कहती है कि मैं भी उसको दुख पहुंचाऊंगी। तो फिर तुम कैसे, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा ना। तो हम हम्म, तो प्रभु के बच्चे हैं और वो भी प्रभु का बच्चा है, लेकिन वो अभी वचन से वंचित है, यानी उसे प्रभु के प्रेम के बारे में नहीं पता है। तो उस वक्त हमारा काम है कि हम प्रभु के प्रेम के बारे में उनको समझाएं कि यीशु आया ही है हमारे जीवन में प्रेम लेकर, वह प्रेम है। और वो लोग हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं, वो उनको प्रभु के प्रेम के बारे में कैसे पता चलेगा, जब हम हमारे रहन सहन से, हमारे बोल चाल से उनको बता सकें कि हम विश्वासी हैं। जब हम प्रेम में चलते हैं, हम उन्हें माफ करते हैं, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, हर वक्त, तो कभी ना कभी वो उसके उसके हृदय में ऐसा एक दिन विचार आएगा, उसके जहन में विचार आएगा कि क्यों ये इसको गुस्सा क्यों नहीं आता है, लेकिन मम्मा मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप चुप रहो, एक दो दिन शायद आप ना खेलने जाओ, तो वो खुद आएगा आपसे खेलने, आपसे पूछने कि आज तुम क्यों नहीं आई। तभी तुम बताओ उसको कि आप, अगर मुझे मुझे भी हर्ट होता है तो आ, लेकिन मैं आपको माफ कर देती हूँ। तो अगर आप मुझसे आ, जैसे छोटे बच्चों में होता है, आज आप खेलने आओ, मैं भी खेलने आऊंगी, हम प्यार से खेलते हैं, थोड़ी अनबन होती है, लेकिन हम हमारा खेल जारी रखते हैं। तो ये तो छोटे बच्चों को समझाने में गया। और कभी कभी हमसे बड़े जो होते हैं, वो लेकर बैठ जाते हैं कि हम हमने तो सबको माफ कर दिया, लेकिन हमसे भूलता नहीं है, हम्म, मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे वैसे किया था। तो हम उन्हें भी याद दिलाते हैं कि वचन में ऐसे लिखा है, मम्मी, या अम, कि प्रभु यीशु ने बताया है कि इतना अम, सब सारे कमांडमेंट हम याद रखें, प्रभु पिता परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर हम उनसे प्रेम ही ना करें, उनका उन्होंने जो किया हम याद करते रहें, तो हमने कैसे माफ किया, है ना? ये हम्म, माफ किसके द्वारा हो सकता है? सिर्फ अ, वचन से और
पवित्र आत्मा द्वारा हम मुंह खोलकर पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि प्रभु, मैं इस चीज को अकेले नहीं कर सकता या कर सकती, मैं सिर्फ आपके द्वारा, आपकी मदद से मैं ये कर सकती हूँ। जैसे ये उदाहरण भी है सिकमन ट्री, जो हम याद रखते हैं बहुत पहले का। हेलो, यस क्या सिस्टर। मैं दे रही हूँ? सॉरी, जी सिस्टर। मतलब क्या मैं, मतलब am I audible? Is यस 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 आई मैं सुन रही थी सिस्टर, मैं सुन रही थी। अच्छा, Very nice. प्रेज गॉड। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, कोई किसी का रिएक्शन ही नहीं है, तो नहीं सिस्टर, आप बोल रहे हैं ना, तो ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं चुप थी। नहीं नहीं, Correct. प्लीज बोलिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है मैं कंप्यूटर से अकेले बात कर रही हूँ ना। ओके ओके सिस्टर, मैं बोलूंगी। मैं हूं ना। मैं हूं ना शाहरुख खान, वेरी गुड। तो जैसे पहले हम लोग पहले ऐसे होता था मुझे कि इस टाइम पे मुझे किसी ने बहुत ही दुख पहुंचाया, मैं बोल तो रही हूँ प्रभु यीशु, मैं इनको माफ करती हूँ, मैं इनको माफ करती हूँ, लेकिन बाकी का आप देख लेना, इसको कैसे ठीक करने का है। मतलब मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी क्योंकि हम एक वचन है प्रभु का कि यू आप चुप रहो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी लड़ाई हमारी तरफ से लड़ते हैं। तो कभी कभी हम क्या है ना, अम, गलत शैतान हमें गलत ट्रैक पे लेके जाता है कि वचन में तो ये लिखा है कि अम, कि ये तो प्रभु आप अभी है ना उसको देगा अभी खर्चा पानी तेरी तरफ से, ये तू प्रभु को बोल कि प्रभु, मैंने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन आप देख लो, आप उसका हिसाब किताब कर लो, है ना? हम्म। तो उस टाइम पे क्या ये सही है? ये सही नहीं है। गलत है, क्यों? गलत है। ये क्यों ऐस सही नहीं है? क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं हिसाब किताब परमेश्वर। तो सही होना चाहिए ना, सिस्टर। मतलब हिसाब किताब तो सही होना चाहिए ना अपने हिसाब से, नहीं सिस्टर, नहीं? पर हम उनको, मैं कैसे बोलूं, अ, हम उनको ये बोल रहे कि मैंने माफ कर दिया, अभी आप देख लो, तो वो एक नेगेटिव हो जा रहा है। हाँ, नेगेटिव हो रहा है ना। यस, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम उसे माफ कर दिए, अभी आप देख लो, पर हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हम प्यार में नहीं चल रहे हैं। हाँ, सही है, हम प्रभु के प्यार में नहीं चल रहे हैं, यस। है ना? प्रभु के प्रेम में नहीं चल रहे, हम शैतान हमारे दिमाग में ये डाल रहा है कि वचन में तो लिखा है कि कि तुमको उसने दुख पहुंचा है, तो नाउ द वेंजेंस, गॉड सेज द वेंजेंस इज माइन, यानी तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। लेकिन उसके पीछे क्या है? प्रभु यीशु ने क्या बोला है कि मैं आप सबसे ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने आपसे प्रेम किया। तो प्रेम में तो हिसाब किताब नहीं रखते। हम्म। लव डज नॉट कीप एन अकाउंट of the wrongs that have been done to us, that people have hurt us, क्योंकि हमने भी तो किसी को दुख पहुंचाया होगा,
हुँ। हम कौन से दूध के धुले? यस सिस्टर। है ना? तो सिस्टर, जब परमेश्वर हमने बहुत कुछ किया बट परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देखते कि हम वो हमारा कोई भी रॉन्ग डूइंग को रखते नहीं है हमारा, ऐसे नहीं रखते कि हाँ, हमने इस दिन में ऐसे किया था, उस दिन में ऐसे किया था। वो अगर हम नहीं रखते तो हमें भी किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है, उन्होंने हमसे प्रेम किया है तो हमें भी उस जो जो व्यक्ति हमारे ऐसे अगेंस्ट आ रहा है तो हमें भी उस व्यक्ति को वैसे ही प्यार करना है, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। जी, और हमें उसके बिल्कुल। लिए आशीष मांगनी चाहिए, उसके लिए ब्लेसिंग, डबल डबल अनॉइंटिंग बोलते हैं ना, दुगनी। जी, हमको जितना मिल रहा है उसका डबल अनॉइंटिंग, डबल अभिषेक उनके जीवन में होए। हाँ, जी हुँ, हाँ। अम, हाँ, अभी मैं एक गए साल ना क्योंकि सिस्टर एक मिनट, ब्रदर जॉनसन बोलते थे उनकी हाँ, टीचिंग में कि हाँ, जब हमने किसी को माफ कर दिया है ना, हाँ, तो उसका खाता वहीं बंद रहना चाहिए, उसके बारे में फिर बात ही नहीं होनी चाहिए, उसका जो है अकाउंट क्लोज वहां पे, ऐसा बिल्कुल, बताते थे ना। बिल्कुल। वो अकाउंट जो है खाता भाई बंद, उसके बारे में ऐसी है ना सिस्टर। हेलो। यस ब्रदर। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज कट गई शायद, लगता है ना, नहीं सुने आपने। नहीं हाँ, सुना तो नहीं। मैं ये बोल रहा था कि जब हमने किसी को माफ कर दिया तो हमारा खाता वही वही बंद हो जाना चाहिए, वो अकाउंट फिर दोबारा रीओपन नहीं होना चाहिए, वो अकाउंट क्लोज यस। बिल्कुल, हुँ, ना। हुँ। फिर उसको हुँ, भूल हुँ। के भले ही हम उनके लिए आशीष मांगे, उनके लिए प्रार्थना करें, अभिषेक मांगे उनके लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे उनके लिए, ताकि जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा तो उनके हृदय में भी प्रेम उमड़ पड़ेगा, तो हो सकता है कि फिर वो भी हमको माफ कर दे ना, जो हमसे भी कुछ हाँ, गलती हुई होगी। हाँ। और प्रभु का वचन ये भी कहता है ना कि हमें जैसे पर्वत को हटाने वाला विश्वास हो, ओके, और हमने बड़े-बड़े झंडे गाड़े होंगे, वचन हम मतलब क्या बोलते हैं, हमने बहुत लोगों को अम बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करके उनको उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करके ये बोलते हैं चंगाई। हम कि और उनको चंगाई के लिए करते हैं हम, या हम लोग घर घर जाकर हम लोग वचन। प्रभु के प्रेम के बारे में बात करते हैं, बहुत सारा विश्वास रखते हैं, हमने बहुत बहुत ऐसे बड़े-बड़े झंडे गाड़े होंगे, लेकिन अगर हमारी आत्मा हम उनसे प्रेम नहीं करते, प्रभु यीशु वाला प्रेम, तो वो सब जो हमने किया है वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, हुँ। है ना? यस करेक्ट। सिस्टर। तो ऐसे गए साल ऐसे हुआ था ना कि मैं ऐसे बॉम्बे में थी और मैं रास्ते पे जा रही थी तो एक बूढ़ी औरत मुझे दिखी, तो मुझे लगा उनको रोड क्रॉस करना है, और वो क्रिसमस का दिन ही हुआ, मैं कुछ ढूंढ रही थी मार्केट में, और मुझे ये बहुत ही मतलब एज्ड लेडी दिखी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट थी, पर्पल ड्रेस, पर्पल हैट में। मैंने बहुत साल बाद ऐसे देखा कि कोई हैट पहने हुए मास के बाद रोड पे बॉम्बे में बहुत कम लेस हैट पहनते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हुँ, मुझे हुँ। लगा उनको कि उनको कोई मदद की जरूरत है, तो उन्होंने कहा, मैंने बोला आंटी आपको रोड क्रॉस करना है क्या, आपको कुछ मैं कुछ मदद करूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे है ना ये चाहिए, गोश्त चाहिए, गोश्त। आज क्रिसमस है ना, तो
मुझे हम्म गोश्त चाहिए। तो मैंने कहा आंटी आप जहाँ खड़ी हैं दोनों तरफ गोश्त की दुकानें हैं, एक लेफ्ट में और एक बस थोड़ा आगे सामने। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द है, तो मैं चल नहीं पा रही हूँ और मैं यहाँ यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, थोड़ा दूर रहती हूँ, तो आप मेरी मदद कर दोगी? तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहले जाके देखती हूँ कि इनके पास आज है कि नहीं, क्योंकि क्रिसमस है ना, तो शायद खत्म हुआ हो या उनको जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं, प्राइस कितना है, मैं सब इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके आपको बताती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले सवाल मुझे ये किया कि अम, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम तो अलग तरीके से बात करती हो। अम, अ, क्या तुम कैथलिक नहीं हो? तो मैंने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं कैथलिक हूँ आंटी। नहीं, तुम्हारे गले में कुछ नहीं है। वो तुम्हारी मदर मैरी किधर है? तुम्हारा गले में क्रॉस किधर है? तो मैंने बोला आंटी गले में क्रॉस पहनने से या मदर मैरी गले में लटकाने से कोई क्रिश्चियन थोड़ी बनता है। हम्म तो वो आंटी ने बोला अच्छा तुम वो हो। तो मुझे समझ ही नहीं आया वो कौन है, वो कौन थी। तो मैंने बोला आंटी देखिए, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कान में भी क्रॉस पहनते हैं ना स्टाइल के लिए, हम्म तो हम्म क्या वो क्रिश्चियन बन गए? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा वो तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला आप ना आंटी, अ, अ, प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारी आत्मा जब भी हम प्रभु से बातें करते हैं दिल से, हमारी आत्मा उनकी आत्मा से बात करता है। अम, और हम जब उनके वचन के इस द्वारा प्रेम करते हैं जैसा उन्होंने किया है, तो हम सही क्रिस्ती कहलाते हैं, भले ही हम कोई भी चर्च में जाएं, है ना। तो हम्म अम, हम एक दूसरे को ऐसा नहीं कहते कि अगर आप कैथलिक हो तो ही हम आपसे बात करेंगे, या एक बार ही ऐसे हुआ था कि मैं जब भी हॉस्पिटल गई, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा पहले तो तुम ये बताओ कि मैं उनसे बाइबल के बारे में, वचन के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन सी चर्च जाती हो। तो मैं फिर हंसी, मैंने बोला यार मैं तो यीशु की फॉलोअर हूँ, उनके वचन की फॉलोअर हूँ। तो आप जो भी चर्च का लेबल चिपकाना हो आप चिपका लो, कोई बात नहीं, आपको जो पसंद है वो लेबल लगा लो। तो वो बोली कि नहीं, क्योंकि मैं बॉर्न अगेन हूँ तो मैं सिर्फ उनसे ही बात करती हूँ, नहीं तो मतलब मैं, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तो मैंने बोला देखो, अगर हम प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु के प्रेम में चलते हैं, तो हमारा ये काम है कि सबसे हमने एक ही तरह रहना है। हम्म ये भेदभाव नहीं करना कि हम कौन से चर्च जाते हैं, बल्कि जो वचन से जिनको वचन की जानकारी नहीं है उन्हें हम उनके प्रेम के बारे में बताएं। अभी इतने साल मैं तो कैथलिक चर्च में ही जाती थी, अभी भी जाती हूँ, जहाँ पे भी प्रभु का वचन बोला जाता है, सिखाया जाता है, अम, हम वो वचन सुनकर जिससे हमें आशीष मिले, अ, अ, शांति मिले, जिससे हमारी आत्मा को आत्मा खुश रहे, वो हमें प्रभु के वचन, अ, जो हम जिससे हमें छुटकारा मिले, जो हमें ईर्ष्या या द्वेष या
टेंशन या गिल्ट, ये सब हमें न हो, वही है प्रभु का प्रेम, है ना? प्रभु का वचन। हम्म। एक दूसरे में भेदभाव नहीं करे। क्या ये बोलते हैं तुम सिस्टर, लोग? ये सिस्टर, भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर आपके पास कोई टेस्टिमनी है? सिस्टर अभी तक तो नहीं है। छोट-मोट वाला भी नहीं है? जी सिस्टर। छो छोटा-मोटा भी नहीं है? सिस्टर, एक एक ऐसा टेस्टिमनी है, जी। छोटा टेस्टिमनी है। कोई बात नहीं, छोटा कोई बात नहीं होती इसके सिस्टर। बाद सिस्टर मैं भी दूंगा ना टेस्टिमनी। क्योंकि हमारे लिए ऐसा लगता है छोटा है, लेकिन किसी और के लिए जो उस दौर से गुजर रहा हो ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। बोलिए ना सिस्टर। ओके, ओके, ओके सिस्टर। अ, अ, ऐसे मेरे एक फ्रेंड है, तो अ, वो ऐसे उनका ऐसे बिज़नेस है। तो तो अभी ऐसे लॉकडाउन तो अभी हट गया है, बट ऐसे है ना कि बहुत मतलब फ़र्क पड़ा है वर्क प्लेसेस में, मतलब जो भी ऐसे अभी काम कर रहे हैं। स हाँ, 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 तो फिर मेरे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मतलब उनके ऐसे क्या बोलते हैं, उनके जो ओनर है, उनके जो ऑफ़िस के ऐसे उनको जो रेंट देना था, तो हाँ, उनके ओनर मतलब जो ओनर है, बॉस है। हाँ, तो वो वो ऐसे मतलब ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, और मतलब उनको ऐसे पेमेंट चाहिए, मतलब क्योंकि ऐसे कुछ डेट्स का डिफरेंस हो गया, और अभी ऐसे दिवाली भी था, तो हाँ, हाँ, तो फिर उनको ऐसे मतलब करेक्ट टाइम में ऐसे पैसा चाहिए, और वो ऐसे मान ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने और फिर उन्होंने उनको ऐसे भी बोल दिया था कि आप मतलब ऐसे खाली कर दो, ये कर दो। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि आप ऐसे कोई भी चीज़ नेगेटिव मत बोलिए, और फिर फिर मैंने ऐसे बोला कि प्रभु यीशु के नाम से जो भी उन्होंने ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स बोला है, वो प्रभु यीशु के नाम से मैं कैंसल करती हूँ। हाँ, और उसके नेक्स्ट दिन ही वो ऐसे मान ही नहीं रहे थे, उनके जो ओनर है ना, वो ऐसे मान ही नहीं रहे थे। मतलब वो ऐसे बोलते कि अभी मतलब पेमेंट ये करो, मतलब ये सब करो बोल के। और फिर बाद में तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि नहीं, मतलब मत ये करो, वो किसी और को दे रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे ऑफिस उनका किसी और को दे रहे हैं, ऐसे सब बोल दिए। और फिर बोले कि मतलब चाबी भी सब कुछ ले चुके थे। फिर फिर वो जब उनका हर एक वर्ड्स जो भी नेगेटिव वर्ड्स प्रभु यीशु के नाम से कैंसल किया था ना, उसके नेक्स्ट दिन ही अ, और लूक चैप्टर 4:18 वो बोल वो वर्स बोला था उनके लिए, वो जो ओनर है ना, हाँ, उनके लिए। तो जी। उसके नेक्स्ट दिन ही वो बहुत फिर शांत हुए, और फिर मतलब वो वैसे बिहेव नहीं किए। तो हाँ, प्रेज़ गॉड, बोले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। ऐसे बहुत बार ही होता है ना कि अ, छोटा-सा जो कन्वर्सेशन, जैसे हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे वार्तालाप बोलते हैं ना, बातें करते हैं एक-दूसरे से, और वो कभी-कभी थोड़ा-सा छोटा-सा आर्ग्यूमेंट होकर बहुत ही बड़ा बन जाता है। यस उसका कोई सिस्टर। मतलब ही नहीं होता। ऐसे हुँ, देखा जाए तो कितना छोटा-सा से शुरू हुआ, लेकिन लोग है ना सालों-साल उसको लेके बैठेंगे, एक-दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे, एक-दूसरे का मुँह नहीं देखेंगे, क्योंकि ये शैतान मतलब अ, अपने फुल काम में डेडिकेटेड है ना, कि हुँ, अम, वो गुस्सा या जलन, वो सब पूरा हमारे हृदय में डाल के रखता है, हमें हुँ, बार-बार याद दिलाता है। हम जितना भूलने की कोशिश करें, हमें बार-बार याद दिलाता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में होते हैं, तो
पवित्र आत्मा हम जो भी पवित्र आत्मा का दरवाजा खटखटाते हैं, पिता परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु अम, आप ही हो, जो आपका वचन कहता है कि आप ही हो जो मुझे इससे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि बहुत साल हुए कि मैंने ये दुख अपने मन में रखा है, हृदय में रखा है, और मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ये क्या होता है ना, ये जो हमें याद दिलाता है, ये पवित्र आत्मा याद दिलाती है कि बेटा तुम इससे इससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है ना। यस। और ये उन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, ये विश्वास द्वारा ही हो सकता है कि प्रभु यीशु के प्रेम से ही हम ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो जो गलत चीज का जो हमने गढ़ बना के रखा हुआ है ना हमारे हृदय में किसी और के खिलाफ, और एंड में पता चलता है कि जब हम उनसे कभी कभार मिल गए या बातें करें, तो वो सामने वाला रुका है अपने कॉल के लिए, हम लोग रुके उसके कॉल के लिए, है ना। यस। पहले तुम में करके गाड़ी निकल गई टाइप्स ना। यस सिस्टर। सालों साल बीत गए, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ था ही नहीं, उनको ना गुस्सा था ना हमको गुस्सा था। और किसी भी तरह है ना, अम, पवित्र आत्मा हमें इससे छुटकारा देता है, कभी जब हम प्रभु के पास जाएं और बोले, प्रभु हमसे अभी ये नहीं हो रहा, लेकिन आपके वचन से, आपका प्रेम जो मेरे हृदय में उंडेला गया है, सिर्फ उसके द्वारा मैं ये कर सकता हूँ। और सामने वाला भी सोचता है कि हाँ यार, ये भी मतलब इसमें कुछ तो चेंज आया है, ये कैसे हुआ, तो वो जानना चाहता है कि कैसे हुआ। तब उस टाइम पे मतलब हम लोग प्रभु के बारे में उनसे बताएं, उनको बोलें कि प्रभु यीशु के प्रेम ने मुझे बचाया है, और मैं इस टाइम पे आपसे ये बातें कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो मेरे हृदय में है, जिनकी आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ में है, वो इस जग के राजा जो है, जो शैतान जो है, उससे कहीं बढ़कर है, उनका प्रेम कहीं बढ़कर है। तो मैं आपसे गुस्सा रख के मुझे क्या मिलेगा, है ना। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एवरीथिंग बट आई हैव नो लव, यस। राइट। तो प्रेज बी टू गॉड। और किसी को कुछ शेयर करना है सिस्टर? सिस्टर शांता, यस सिस्टर। आपको कुछ और सही शेयर करना है? सिस्टर सैंड्रा? और कुछ शेयर नहीं करना है सिस्टर, कुछ हो Nothing, तो मैं sister. बोल दूँ। ओके, प्रेज गॉड। तो सिस्टर शांता, आप क्लोजिंग प्रेयर कर सकती हैं? यस सिस्टर। प्रेज गॉड। ओके, तो आप क्लोजिंग प्रेयर कर दें। ओके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हमने इस क्लास में सीखा आपके प्रेम के बारे में, हमें कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रेम से चलना है। यस, आप
आपका उदाहरण लेके हमें प्रेम से चलना है। थैंक यू अब्बा पिता कि आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने आपके एक लौते पुत्र को हमें दे दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको कि हर दिन आप हमें सिखा रहे हैं, नए-नए चीज़ें सिखा रहे हैं और आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे हर एक प्रॉब्लम्स में कैसे क्या करना है, क्योंकि आपने हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले से दे दिया है। थैंक यू, थैंक यू आपने हमसे इतना प्यार किया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपको कि आपने हमसे बहुत प्यार किया। आपने हमारा जो भी बुरा काम हमने किया था, हमने आपको दुःख दिया, आपको बहुत दुःख दिया, फिर भी आपने वो नहीं देख के आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमसे प्रेम किया। थैंक यू। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर, सारा महिमा आपको हम देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। Amen. Amen. आमीन। Amen. Thank you, Jesus. थैंक यू, Praise you, Lord. थैंक यू Thank you, Lord. जीसस। Thank you, Jesus. तो कल मुलाकात होगी. यस हो, सिस्टर। praise God. Um, so we shall take leave now. ओके सिस्टर। Praise God. Have a good evening. ओ गुड नाइट Thank you, Sister सिस्टर। Sandra. Thank you, Thank you. Brother Jude. Thank you, Sister Shanta. थैंक यू मुझे सिस्टर डायना। हेल्प करने के लिए. सॉरी Praise अगर मैंने God. कुछ गलत निकल गया। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए. मैं सॉरी हूँ अगर मतलब मैं फोकस नहीं रही, अगर मैं सारे डायरेक्शन में बोल नहीं रही सिस्टर, थी आपने तो. आपने अच्छे से सब कुछ बताया। नहीं मतलब कभी कभी मैं मतलब ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी बोलते बोलते ये नहीं होता है ना, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट प्रेज गॉड. प्रेज गॉड। थैंक यू Thank सिस्टर you so डायना। much for helping me. Praise God. Thank you. थैंक यू फॉर देयर एंड टीचिंग अस। Thank Thank you, you, darling. Jesus. God bless you, It's Sister Dinah. all glory, honor, and praise be to God alone. Belongs to God alone. Thank you, Yes. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. थैंक Praise यू लॉर्ड। God. So हम कल मिलते हैं ओके इसी सिस्टर। समय. ओके Evening. सिस्टर। Bye bye. Good 7 PM, night. सॉरी Bye-bye. टुडे आई वाज लेट, सॉरी। Are don't have to say sorry. Thank you for joining. ओके सिस्टर, वी विल मीट टुमारो। Sure, sure. ओके, गुड नाइट Praise सिस्टर। Jesus. Good Good night. night.